Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 26 एंड 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। अभी हमने ऑब्जर्व किया था रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। कौन थे चीफ गेस्ट यहाँ पर? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के? फ्रांस के। ये मार्क करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करें फिर आज के क्वेश्चन से। डेजर्ट नाइट ये एक्सरसाइज थी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। पूछा जा रहा है कि किन कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो डेजर्ट एक्सरसाइज है ये एयर फोर्सेस के द्वारा बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में इन तीनों की एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कराया गया था। एंड होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया। राइट। देन कहाँ पर हुई? लोकेशन क्या थी? अल्डाफ्रा एयरबेस, जो कि यूएई में। करेक्ट। फिर कब थी? 23 जनवरी को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। फिर एक और चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किन फाइटर जेट्स ने या फिर आपके एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो सुकोई 30 मार्क 1, फिर मिग 29, जैगवार, इनका हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराई गई बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई की एयर फोर्सेस के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन देखें, जैसे बताओ यूक्रेन पीस समिट। यूक्रेन पीस समिट ये किसके द्वारा भी होस्ट कराई गई? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको होस्ट कराया गया। देन सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड कौन सा बन गया है ग्लोबली? तो वो है टीसीएस। फिर किस कंट्री को अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया? वो है रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे। ठीक है। फिर किस कंट्री ने अभी एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया? नॉर्थ कोरिया के द्वारा टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड यूएनएफएओ, इन तीनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया एक इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया, कि कैसे हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकें, एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग बढ़ा सकें, एग्रीकल्चर से जो इनका आउटपुट है वो बेटर कर सकें, फार्मर्स की इनकम हम बेटर कर सकें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसे एआई, आईओटी डिवाइसेस, सेंसर्स को हम यूज़ कर सकें, मशीन लर्निंग,
देन सैटेलाइट की मदद से वेदर प्रेडिक्ट कर सकें, देन ड्रोन्स की मदद से हम उसको स्प्रे कर सकें आर्टिफिशियली। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक बेटर सिस्टम, एक बेटर इकोसिस्टम बनाने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 FPVs। FPV क्या होता है? फास्ट पेट्रोल वेसल, राइट। 14 FPVs प्रोक्योर करने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ अभी साइन किया? तो ये 14 FPVs के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो था मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, राइट। ये मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1070 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। 14 FPVs यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे, किसको? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये FPVs रहेंगे, ठीक है। एंड ये जो FPVs हैं, याद रखेंगे, इंडिजीनियसली डेवलप किए जाएंगे, मेक इन इंडिया के अंडर ही रहेंगे। जो भी पार्ट प्रोक्योर किया जाएगा वो इंडिया से ही प्रोक्योर किया जाएगा, ताकि इंडिया में ग्रोथ लाई जा सके। MDL की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संजीव सिंघल। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1934 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ साथ कुछ और अगर क्वेश्चन देखे जाएं, जैसे बताओ अभी रिसेंटली वो इंडिया की पहली BSI ISO 27001 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल फर्म कौन सी बन गई? वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ये हम काफ़ी बार क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ये वाला। देन कौन सी नई इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज बनी है? इंडिया की न्यू क्लासिकल लैंग्वेज वो रहेगी फारसी। इसको मार्क करके चलेंगे, फारसी, ठीक है। देन हम जानते हैं इंडिया इटली के साथ टाई अप किया ताकि कल्चरल एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकें। फिर इंडिया ने फ्रांस के साथ टाई अप किया ताकि जो साइंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्क किया जा सके, ठीक है। फिर अभी इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ था। कौन सा एडिशन था? तो वो 47th एडिशन था इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? तो सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये अभी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में था, राइट। प्रहलाद जोशी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड भोपाल मध्य प्रदेश में था, ठीक है। इसको मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मध्य प्रदेश बैग द फर्स्ट रैंक एंड रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स इन द माइनिंग सेक्टर, करेक्ट। माइनिंग सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। फिर इसी के साथ साथ बियॉन्ड माइनिंग, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा के साथ ही साथ एक बियॉन्ड माइनिंग नाम का एक एग्जीबिशन भी चल रहा था, जहाँ पर हम देखेंगे कई सारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 70,000 से भी ज़्यादा कॉपर स्ट्रिप्स, 775 कॉपर वायर्स ऑफ 99.99 प्योरिटी ये भी प्रोवाइड कराई गई टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या यूपी। देन टेल मी विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत पर्व ये ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये 23 से 31 जनवरी तक अभी रहेगा। भारत पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। फिर इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया, और ये जो MOU था ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए था, तो ये था क्यूबा के साथ, ठीक है। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ममानी फेस्टिवल। ममानी फेस्टिवल जो है लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ओपन किया एक इंडिया सेल्फी पॉइंट। कहां पर? ये इंडिया सेल्फी पॉइंट कहां पर रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर में, इन उरी इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें ये इंडिया सेल्फी पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ओपन किया गया। ये नियर लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा, जो कि उरी में है, राइट। मार्क करके चलेंगे। NH-44 जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज है इंडिया का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, उसके भी पास में रहेगा ये आपका सेल्फी पॉइंट। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं इंडिया सेल्फी पॉइंट नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन उरी इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी युगांडा के द्वारा G77 कंट्रीज प्लस चाइना को होस्ट किया गया ड्यूरिंग द थर्ड साउथ समिट। ये जो थर्ड साउथ समिट है, पूछा जाए कि लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर होस्ट की गई थी, तो उगांडा में। उगांडा में भी कहाँ पर? कंपाला में। कंपाला क्या है? कैपिटल है युगांडा की, राइट। तो युगांडा के द्वारा होस्ट किया गया थर्ड साउथ समिट, जहाँ पे G77 प्लस चाइना का यहाँ पे हमें प्रेजेंस देखने को मिला। फिर इसी की एक थीम याद रखेंगे, जिस थीम पर ये आपका थर्ड साउथ समिट होस्ट कराई गई थी। थीम क्या थी इसकी? लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड, ये आपकी थीम का यहाँ पर नाम रहेगा, राइट। और हम देख चुके हैं कि कैपिटल क्या है युगांडा की? कंपाला, जहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फ्यूचर ग्रोथ पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा बेसिकली, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक स्वैग पेंशन प्लान को लॉन्च किया गया, जो कि कस्टमाइजेबल एन्युइटी ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, राइट। तो स्वैग पेंशन प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर इसकी बात करें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? प्रशांत त्रिपाठी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली इजी डाइनर ये एक क्रेडिट कार्ड है। इजी डाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट, इजी डाइनर को। फिर इसी के साथ साथ LIC, इसने ओवरटेक कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSU। देन LIC ही 9.99% स्टेक बाय कर रहा है किसमें? HDFC में। इसका भी अप्रूवल अभी रिसेंटली आया, करेक्ट। और हम देख रहे हैं HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट पर है अभी। फिर बॉब 360 ये क्या है? एक डिपॉजिट स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई? बॉब नाम से याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च की गई। देन जीवन धारा सेकंड प्लान, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये भी LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। फिर किनको कमांडेंट अपॉइंट किया गया इन इंडियन नेवल अकेडमी? इंडियन नेवल अकेडमी में किनको कमांडेंट अपॉइंट किया गया? विनीत मकार्थी को, ठीक। फिर किसने अभी टेक ओवर किया एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? वो है शांतनु झा, राइट। फिर किनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का, तो वो रहेंगे ऋतिक रोशन, ठीक। कमिंग बैक, RBI के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पंचायत है ना, उनको अपना पैसे जो इकट्ठे करने का, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के जो प्रोसीजर्स हैं, जो एफर्ट्स हैं, उनको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, राइट। उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ताकि जो डेवलपमेंट है उनके एरिया में, पंचायत एरिया में, वो हो सके, राइट। बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पंचायती ज़मीनें होती हैं, जो पंचायत हैंडल करती है, जैसे स्टेट लेवल पे सरकार आपकी हैंडल कर रही है, तो जो ग्रामीण एरियाज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, वहाँ पे पंचायत देखती है ये सारी डेवलपमेंट। तो उनकी जो स्पेंडिंग है उसको बेटर करने के लिए तो रेवेन्यू आना चाहिए, तो उस रेवेन्यू को इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई, और ये ऐसा RBI की रिपोर्ट में बोला गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी के द्वारा रिलीज किया गया फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। पहले जो आपका ये सेटलमेंट होता था ना स्टॉक एक्सचेंज का, ये थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं किया जाता था। ऑफर फॉर सेल जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज के द्वारा, वो आपका थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे सेबी ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया कि जो भी ये ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म होगा ना, BSE एंड NSE स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होगा, राइट। आपका स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही माध्यम से ये आपका ऑफर फॉर सेल प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये जो फीचर है, इससे क्या होगा, बेसिकली हम देखें, जो आपका ये फ्रेमवर्क रिलीज किया गया OFS के लिए, इससे क्या होगा, एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था ये, राइट। एडिशनल कॉस्ट लगते थे, इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसको इग्नोर करने के लिए ये आपकी नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि जो सेबी है, इन्होंने डिसाइड किया जो प्रोमोटर्स हैं, दे कैन ऑफर शेयर्स टू एम्प्लॉयज इन OFS थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म ओनली। फिर ये जो OFS है एम्प्लॉयज़ का, ये
will be on the T+1 day along with the retail category under a new category called employee. And जो ये T+1 day है, इसका मतलब है जो ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स होंगे ना, ये कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 1 day फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज 24 आवर्स. ठीक है. नेक्स्ट है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल. इन्होंने लॉन्च किया है कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव. ये जो कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव है ना, ये लॉन्च किया गया ताकि जब आप हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं तो वहाँ पर आपकी सारी फैसिलिटी कैशलेस हो सके, आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े. इससे क्या होगा, जो आपका क्लेम लेते हो आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना, उस जनरी को एक फ्रिक्शनलेस प्रोसेस बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया जीआईसी के द्वारा. अलग अलग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर यहाँ पर इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. इससे क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा कि एक तो आपका जो सेटलमेंट होगा ना इंश्योरेंस कंपनी से, जब आप क्लेम लेते हैं तो उस प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस बना देगा. करेक्ट, क्योंकि हमें डील नहीं करना, फिर सब कुछ आपका हॉस्पिटल्स अपना आगे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके, अगर आप वहाँ पर अपना इंश्योरेंस का डाटा दीजिए एंड फिर हॉस्पिटल ही अपना क्लेम वहाँ से ले लेगा. द इनिशिएटिव एक्सटेंड्स कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स टू ऑल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग दोज दैट आर नॉट इन टाई अप्स विद इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो. राइट, उसको भी यहाँ पर अंडर लाने की बात की गई. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर. अभी फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर एंड सोशलिस्ट आइकन कर्पूरी ठाकुर, इनका रिसेंटली निधन हो गया था थोड़े टाइम पहले. एंड इनको यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो पोस्टह्यूमसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी पोस्टह्यूमसली भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया. वो थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी. आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. एंड ये 49th रेसिपिटेंट बने हैं ऑफ भारत रत्न एंड 15th जिनको पोस्टह्यूमसली यहाँ पे सम्मानित किया गया. मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक पर आते हैं. तो अभी रिसेंटली 5th ACTM बार्ज, ACTM क्या होता है, एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल. तो 5th एडिशन ऑफ ACTM बार्ज यार्ड 129, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया. कहाँ पर लॉन्च किया गया, सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड SSPL थाने महाराष्ट्र में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है. करेक्ट, मार्क करके चलेंगे यार्ड 129 को, जिसको हम LSAM 19 के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स. अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक लॉन्च की ऑन स्मृतिवन अहेड ऑफ द 23rd एनिवर्सरी ऑफ द भुज अर्थक्वेक. भुज अर्थक्वेक 2001 में आया था. राइट, तो यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया गया, स्मृतिवन एन अनपैरेलल्ड अपोथेसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ द गुजरात अर्थक्वेक. राइट, गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया एंड 23rd एनिवर्सरी ऑफ भुज अर्थक्वेक के अहेड इसको लॉन्च किया गया. इस बुक को पब्लिश किया जाएगा गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा. राइट, एंड इस बुक में अचीवमेंट्स जो रहेंगी स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम की, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है. फिर यहीं पे एक टर्म आ जाता है मियाकी फॉरेस्ट. ये जो मियाकी फॉरेस्ट होता है ना, बेसिकली एक टाइप का फॉरेस्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बैरन लैंड है. राइट, आप इसके ऊपर खाद, फिर इसके ऊपर आप पराली, यहीं पर आप पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, काफ़ी सारी चीज़ें डाल देते हैं. राइट, बैरन लैंड के ऊपर. एंड यहाँ पर फिर आप सीड्स को ग्रो करते हैं. राइट, सीड्स डाल देते हैं. करेक्ट, इससे क्या होगा, बहुत ही साथ एरिया में आप देखेंगे काफ़ी सारे मल्टीपल स्पीशीज ऑफ ट्रीज आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं साथ के साथ. इससे क्या होता है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है. राइट, एंड जैसे हमने देखा कि बैरन लैंड के ऊपर ही हमने फर्टिलाइजर्स, पराली, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, तो विद इन फ्यू टाइम, थोड़े टाइम के अंदर ही आप देखेंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, वो भी इंप्रूव होने लग जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी स्पीशीज यहाँ पे एक साथ लगाई जाती हैं एंड उस पर्टिकुलर पैच को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है. एंड जैसे जैसे एक इकोसिस्टम बनता है तो ये जो लैंड है वो फर्टाइल होने लग जाती है एंड ये फॉरेस्ट आपका ग्रो करने लगता है. करेक्ट, तो ये जो मियाकी फॉरेस्ट है ना, ये एक इनिशिएटिव, ये या फिर हम बोले किस कंट्री का है सिस्टम है, तो ये जापान का ये एक प्रोसेस है मियाकी फॉरेस्ट. राइट, ये छोटे छोटे आप देखेंगे कि घर के सामने जापान में छोटे पैच ऑफ लैंड पर भी आपका ये मियाकी फॉरेस्ट को, मियाकी गार्डन्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है. एंड सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएटिव इंडिया में भी काफ़ी जगह पे लाया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं नेशनल वोटर्स डे. सिटीजन्स को, यूथ्स को एंकरेज करने के लिए ताकि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें एंड वोट्स डाल सकें, इसीलिए यहाँ पर ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि ये फाउंडेशन डे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का.
एंड इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो ये 14th एडिशन था नेशनल वोटर्स डे का, जो ऑब्जर्व किया गया टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ द सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन देयर इज अ थीम जो आपको याद रखनी पड़ेगी। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये थीम रहेगी आपकी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। किसकी? नेशनल वोटर्स डे की 2024 की, एंड यही आपकी 2023 की भी थीम थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है नेशनल टूरिज्म डे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है एंड बेसिक एम क्या है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी इकोनॉमी का। इवन अगर आपको याद हो, जब कोविड-19 हुआ था तो श्रीलंका में भी आपने देखा टूरिस्ट आने बंद हो गए और उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। इवन अगर करंट सिनेरियो देखें तो पहाड़ों पर अभी हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, राइट? स्नोफॉल बहुत ना के बराबर है। तो उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बुकिंग्स यहाँ पे टूरिस्ट के द्वारा कराई गई थी वो बुकिंग्स कैंसिल होती हुई दिख रही हैं। जो इवेंट्स स्नो से रिलेटेड होते थे आपके पहाड़ों में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, वो भी कैंसिल होते दिख रहे हैं। तो जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर रही है, राइट? तो टूरिज्म से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी इकोनॉमी चलती है, एंड अगर टूरिज्म इंपैक्ट होता है किसी जगह का तो वहाँ की इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसी के लिए ये डे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम ये नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को। और इसकी थीम याद रखेंगे, सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। ये है आपका थीम ऑफ द नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी 2024 को जो ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन की तरफ। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट अभी हमने देखा, ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड एफएओ के द्वारा लॉन्च किया गया इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 1070 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। देन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भोपाल, मध्य प्रदेश में। दैन इंडियन आर्मी ने ओपन किया इंडिया सेल्फी पॉइंट नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर? उरी में, इन नियर द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। दैन उगांडा की बात करें, युगांडा ने होस्ट किया G77 प्लस चाइना, जो कि 3rd साउथ समिट में होस्ट किया गया। किसके द्वारा होस्ट किया गया? युगांडा में। और कहाँ पर? कंपाला, युगांडा में। कंपाला कैपिटल है युगांडा की। दैन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया स्वैग पेंशन प्लान विद कस्टमाइजेबल एन्युटी ऑप्शंस। आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई, पंचायत नीड्स टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर ओन रेवेन्यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने रिलीज किया फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। देन जीआईसी, इन्होंने लॉन्च किया कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव्स। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर एंड सोशलिस्ट आइकन कर्पूरी ठाकुर, इनको पोस्ट्यूमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देन 5th ACTM बार्ज यार्ड 1 to 9 इसको लॉन्च किया गया एट SSPL थाने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक लॉन्च की ऑन स्मृति वन अहेड ऑफ द 23rd एनिवर्सरी ऑफ भुज अर्थक्वेक। देन 14th नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया, एंड नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं ला सकूं। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा रिवीजन पार्ट। इससे आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा अप्रूवल मिला कि वो अपनी एक सब्सिडरी, ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी फॉर्म कर सकती है। तो वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से अप्रूवल मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? तो अभी याद रखेंगे, हमने 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया। कहाँ पर किया? लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, फरीदाबाद, हरियाणा में ये इवेंट हुआ था। करेक्ट। 17 से लेके 20 जनवरी तक ये आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हमने ऑब्जर्व किया, एंड इंडिया की जो अचीवमेंट रहेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसको यहाँ पर शोकेस किया गया। फिर यहीं पे आपको इसकी थीम याद रखनी पड़ेगी, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, राइट? सो थीम क्या रहेगी इस 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इंडिया विल सप्लाई ग्रीन अमोनिया टू विच कंट्री? तो अभी इंडिया ने एक टाई अप करा किस कंट्री के साथ? वो है जापान के साथ, ताकि इंडिया सप्लाई करेगा ग्रीन अमोनिया जापान को। इंडिया की कौन सी कंपनी करेगी अगर ये पूछा जाए? तो ACME
क्लीन टेक सॉल्यूशंस, क्लीन टेक सॉल्यूशन, राइट। ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन ये सप्लाई करेगी ग्रीन अमोनिया किसको, जापान की कौन सी कंपनी को, जापान की कंपनी रहेगी IHI कॉरपोरेशन, राइट। और ग्रीन अमोनिया क्यों करेगी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल्स है एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस किया जा सके, जो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सके। जैसे कोई भी अगर आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वार्म ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये आपका हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। तो सिमिलरली ये प्रोसेस ना हो सके और हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें एंड हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ रह सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस को जो हम वो करते हैं एक्स की बाहर हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं वो ना हो सके। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, जापान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ NFSU कहाँ पर हुई अभी, तो कहाँ पर हुई है ये ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे हम कि हुई कहाँ पर, तो गांधीनगर गुजरात में हुई, ठीक है। फिर अब याद रखेंगे गांधीनगर का गुजरात में, अब याद रखेंगे ये 5वीं इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी। इंटरनेशनल पूछा जाए कि कौन सी इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई, तो 5वीं। कौन सी ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई, तो 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई। कहां पर हुई, एट NFSU। NFSU क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है, गांधीनगर गुजरात में। स्पोर्ट्स पर आते हैं तो अभी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई 2024 की। इंडिया की यहाँ पे कौन सी पोजीशन रहेगी इन दिस एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, तो इंडिया 5th पोजीशन पे आया विद 8 मेडल्स, जिसमें से आपके 8 मेडल्स में से अगर हम देखें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। चाइना यहाँ पर टॉप पे रहा ऑन 1st पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स, करेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी, तो ये कुवैत में हुई थी, राइट। 12 से 22 जनवरी तक ये आपकी कुवैत में हमें देखने को मिली एंड इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पर 5th पोजीशन सिक्योर की विद अ टोटल ऑफ 8 मेडल्स। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं तो अभी कैनेडियन फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर नॉर्मन जेविसन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 1926 में ओंटारियो कनाडा में इनका जन्म हुआ था एंड एट द एज ऑफ 97 इन LA USA इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, उनके राइट्स, इसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2008 में, 24 जनवरी 2008 में। और इस बार 2024 में हमने इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया, हमने इसका 17th एडिशन ऑब्जर्व किया है 2024 में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी 24 जनवरी को ही ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस रोल है हमारे पीस एंड डेवलपमेंट में, उसको ये ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस बार 6ठा एडिशन ऑब्जर्व किया गया 2024 में हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का। एंड जो थीम रहेगी इसकी क्या रहेगी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की, करेक्ट। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये डे, 24 जनवरी 2019 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर, तो अभी BCSCI के अवार्ड्स हुए एंड इनके द्वारा अभी नमन अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। नमन अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि BCCI के द्वारा जो ये अवार्ड दिए गए, बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला 2023 का, शुभम गिल को। बेस्ट क्रिकेटर या फिर मेंस नहीं, हम बोलेंगे बेस्ट क्रिकेटर मेल अवार्ड एंड बेस्ट क्रिकेटर फीमेल अवार्ड का अवार्ड किनको मिला, वो है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, तो मार्क करके चलेंगे। शुभम गिल को तो मिला बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट मेंस, मेल नहीं मेंस ही लिख लेते हैं, राइट, मेंस एंड वीमेंस। तो बेस्ट क्रिकेटर या फिर हम बोलें
बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर 2022-23 के शुभम गिल एंड बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर 2022-23 की कौन रहेंगी? दीप्ति शर्मा। मार्क करके चलेंगे इन दोनों को, राइट। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर पर आते हैं। तो जापान ने अभी अपना जो 1.95% स्टेक सॉफ्ट बैंक में था वो उसको सेल कर दिया है। सॉफ्ट बैंक के पास टोटल 7.01% स्टेक था, अभी उन्होंने 1.95% स्टेक सेल कर दिया है, तो 5.06% स्टेक अभी इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, किसके पास बचा हुआ है? जापान के सॉफ्ट बैंक में। इन्होंने सेल किस में किया? पेटीएम में किया। नेक्स्ट HDFC बैंक, इन्होंने भी अपना 2.01% स्टेक कैम्स में सेल कर दिया फॉर 252.34 करोड़ रुपीस। HDFC बैंक ने 2.01% शेयर अपना कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, इन्होंने इसमें सेल कर दिया फॉर ऑल कैश कंसिडरेशन ऑफ 252.34 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं सोनी। अभी मर्ज हो रहा था जी एंटरटेनमेंट के साथ, लेकिन इनके जो मर्जर है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। एंड जो ये मर्जर था $10 बिलियन का ये मर्जर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट अब वो रिसेंटली मर्जर को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये जो पार्टनरशिप थी एम कर रही थी कि टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी टू कम्पीट अगेंस्ट नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन। ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है, पूछा जा रहा है किन कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुआ? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हमें देखने को मिलती है ये एक्सरसाइज साइक्लोन। इस एक्सरसाइज का ये सेकेंड एडिशन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा सकता है कि लोकेशन क्या थी इस एक्सरसाइज की जहां पर ये हुई? तो ये इजिप्ट में ही हमें देखने को मिली सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड फिर इंडियन की तरफ से, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से किस रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो पैराशूट रेजिमेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, इजिप्ट की बात करूं तो कैपिटल बताओ जरा क्या रहेगी? कायरो कैपिटल रहेगी इजिप्ट की। एंड अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 19th एडिशन ऑफ नाम समिट। यह भी कहां पर हुई? जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए, एक कि 19th एडिशन था इस नाम समिट का, दूसरा कि इंडियन डेलीगेशन को इस नाम समिट में किसने लीड किया? तो इट वाज लेड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, फिर कहां पर हुई पहली चीज? फिर ये याद रखेंगे, कंपाला उगांडा में हमें ये 19th एडिशन ऑफ दिस नाम समिट। नाम क्या होता है आपका? नॉन अलाइड मूवमेंट समिट, राइट। यहां पर हमने देखा कि मोर देन 120 डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम मोर देन 120 कंट्रीज। एंड ये जो 19th एडिशन समिट था ना, यहाँ पे याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार जो चेयरमैनशिप रहेगी वो युगांडा के पास है। ये चेयरमैनशिप युगांडा के पास है 2024 से 2027 तक। इससे पहले 2019 से 2023 तक जो चेयरमैनशिप थी वो अजरबैजान के पास थी। और ये जो आपकी नाम समिट होती है ना, 3 साल में एक बार होती है, वंस एवरी 3 ईयर्स हमें ये नाम समिट देखने को मिलती है, करेक्ट। और कंपाला युगांडा में अभी 19th एडिशन था। 18th एडिशन कहाँ पर हुआ होगा? वो था आपका अजरबैजान में, क्योंकि 2019 से 23 तक जो हमारी चेयरमैनशिप थी या प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? अजरबैजान के पास। और अब जो चेयरमैनशिप है नाम समिट की 2024 से 2027 तक किसके पास है? युगांडा के पास। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर होमवर्क सेक्शन पर। नेक्स्ट, DK Basu's judgment recently seen in news is related to which one of the following? दूसरा, which 2 other countries participated in exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force? तीसरा, recently India sent 40,000 liters of malathion to which country to counter threat posed by locusts? चौथा, where was the 42nd महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? और 42 डे लॉन्ग, नॉट 42nd एडिशन बल्कि 42 डे लॉन्ग महामंडल फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट किया गया और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ये भी बताओ साथ साथ। पांचवा, वाई इज लेक रेतबा कॉमनली रेफर टू एज पिंक लेक? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। इवन शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
कजन्स, रिलेटिव्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं. नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, डेली बेसिस पे हम जो डेली की न्यूज़ होती हैं वो भी यहाँ पर कवर करते हैं ताकि आप अपडेट रह सकें. एंड एकदम पेपर जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं, पेपर के पढ़ने की तरह ही आपका ये एक लेक्चर रहता है जिससे डेली की डेली हम जो भी न्यूज़ आ रही हैं उसका पता रह सके. इवन ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराता है. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.